Hello student, good afternoon dear my students of class 9. This is the third part of the angles chapter is going on. This chapter name is angle sum property of a triangle. Okay, just recall means type of the triangles. What is the triangles? Okay, triangles means three line segment is bounded by a geometric figure is called the triangles, and type of the kinds of the triangle, there are 6 type of triangle. Okay, 3 are on the basis of the sides, means equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. Already you have known, just recall you. And according to the angles, means right angle triangle, acute angle triangle and obtuse angle triangle. Okay, this is the property. So your topic is angle sum property of a triangle, means sum of, there are the 3 angles of a triangle and 3 sides of a triangle. The sum of 3 angles is equal to 180 degree. Just I will prove you in the 180 degree. Okay? Okay student, table and prove that the sum of the angles of a triangle is 180 degree. So I will prove it. So suppose ABC is a triangle. Suppose ABC is a triangle. So we have to prove. That angle ABC plus angle BCA plus angle CAB equal to 180 degree. Just I will prove it. Okay. So first of all, take the value of this angle. So your convenient. So I will take this angle, measurement is X, this angle is Y and this angle is Z. Okay. First take this angle. So this is the X, then plus Y plus Z equal to 180 degree. हम फर्स्ट प्रूव करेंगे जो x plus y plus z equal to 180 degree. क्लियर लिखो z को बेटा, ठीक है ना, z. Okay. So few construction are required to prove that x plus y plus z equal to 180. तो construction required होगा. Construction. First write the construction. क्या करोगे? Draw a line. ठीक है ना, a line. जैसे a line parallel to, ठीक है ना, a line, जब a line का नाम दे रहे through the a line PQ. ओके, एक लाइन हम ड्रॉ कर लिया. ओके, ड्रॉ ए लाइन PQ parallel to BC. ठीक है ना, पैरेलल टू BC से पैरेलल करके इसको पैरेलल हम इसे लाइन ड्रॉ कर दिया. थ्रू ओके, थोड़ा चेंज कर बेटा स्पेलिंग करते. THROUGH थ्रू ए पॉइंट, थ्रू पॉइंट ए पॉइंट थ्रू से एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो विच इज द पैरेलल टू द PQ. Now, according to the previous chapter, so this angle is the alternate angle. Okay, alternate of the x angle. So alternate interior angles always equal. So it will be the x. This is the x, and this is the alternate angle. Okay, PQ parallel to BC. AC is the transversal. So y angle is the alternate interior angle. This angle. So it is always y. So हम लोग का प्रीवियस चैप्टर में सीखा था alternate interior angle is equal to same each other, ठीक है ना, one another, ठीक है ना बेटा. So equal to the x, this is the x angle, so it will be the x angle, this is y, this it will be the y angle. Now we'll prove that एक straight angle, suppose एक straight angle देखो, एक straight angle में देखो this angle therefore, so this is देखो angle x, angle y, z and angle y.
this is the straight angle. What is the value of the straight angle? You know, 180 degree. ठीक है ना? Straight angle, one straight angle equal to one straight angle equal to 180 degree. इक्वल हम लोग को नोन बेटा इस चीज को, ठीक है ना? ये तो नोन हो गया. One straight angle equal to 180. This is the straight angle formula. So this is here the straight angle. This is the 180 degree. So it is very easy. देखो, then देखो x, therefore देखो x plus z plus y equal to 180 degree. Okay, because कौन सा? This is because PQ is a line. ठीक है ना? PQ is a line. Okay, so P point में 180 डिग्री फॉर्म कर, जैसे हम तुमको प्रूव कर दिया. Therefore this implies इनका just x plus y plus z equal to 180 degree. Okay, then value of the x, angle ABC plus angle BCA plus angle CAB equal to 100 degree. 180 degree. Hence proof that बेटा. ये प्रूफ हो गया बेटा. ठीक है ना? जो हम तुम लोग को जो प्रूव करता है इसको, लेकिन इसको हम लोग का यूज करोगे. सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज 180 डिग्री. यू विल अप्लाई द एक्सरसाइज here. Okay, so next question will the exterior angle. Okay, pause the video, note down on your copy. Okay student, just I have proved in front of you the sum of the three angles of a triangle is always 180 degree. Now the next topic is, देखो, if a side of a triangle is produced, then exterior angle so form, जो exterior angle form होगा is equal to the sum of the two interior angles. इसको हम लोग का यूज करोगे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो टेक ड्रॉ द एनी ट्रायंगल ABC व PQR is the triangle. ओके, देखो एनी साइड, इफ ए साइड, कोई भी तीनों साइड में एक साइड को यदि प्रोड्यूस करोगे, देन फॉर्म ए एक्सटीरियर एंगल. जैसे क्यू आर प्रोड्यूस्ड एट एक्स. ठीक है ना? एक्स तक हम प्रोड्यूस कर दिया. इसमें जो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. इस एंगल को कहा जाता है हम लोग का एक्सटीरियर एंगल बेटा. ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. समझ गए चीज को बेटा? दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द, देखो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर. ओके, टू इंटीरियर एंगल्स. ओके, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ये भी लिख सकते बेटा, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ओके, समझ गए? यहाँ पे टू इंटीरियर ऑपोजिट, OPPOSIT ऑपोजिट एंगल्स. ये वाला लिखो बेटा. ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? देखो, यहाँ पे जो एक्सट्रा एंगल हुआ है, इनका रिजल्ट किसके साथ होगा? दोनों एंगल को हमको छिपा दोगे. एंड ट्रायंगल का दो एंगल किसको दिखाई पड़े? बोलो देखो, यही दोनों एंगल को दिखाई पड़े. ठीक है ना? यही दोनों एंगल को दिखाई पड़ देखो. दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. ठीक है ना? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल. ठीक है ना? यही दोनों की चीज ऐड करोगे, इसके साथ इक्वल होगा. सपोज इसका देखो 120 डिग्री. सपोज इसका वैल्यू 120 डिग्री, तो दिस दोनों का मिल के 120 डिग्री. अगर ये 70 डिग्री एंड इट विल बी द 50 डिग्री. दिस इज द रूल. अप्लाई करो बेटा. ओनली मतलब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल मीन्स क्या? जहां पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ उसको छिपा दिया. तो दिस एंगल कॉल बोलते हैं ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. अनदर साइड, ड्रॉ द अनदर ट्रायंगल. अनदर, हम दिस साइड को हम इसको देखो, हम लोग का नाम था एक्स वाई जेड ट्रायंगल. हम किसी साइड को हम कर सकते हैं. हम जिधर अगर सपोज हम ए साइड को बनाओगे, ए साइड को, तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो, तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल किसको? हम लोग इसको छिपाओ. ताकि ये दोनों एंगल, दिस एंगल आर कॉल्ड द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों के साथ अगर इसको यदि 110 डिग्री लाओगे, तो ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री. ठीक है? ये दोनों मिलकर 110 डिग्री. दिस इज दिस थ्योरम. यू विल अप्लाई द एक्सरसाइज. ओके, नाउ यू कम द, pause the video, note down on your copy. हम लोग एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट,
This is the exercise NCERT book from the NCERT book, exercise 6.3. So the question number 1. In figure दिया गया आपको given figure, the figure side QP and RQ of a triangle are produced to point S and T. देखो QP को S में प्रोड्यूस किया एंड RQ को T में प्रोड्यूस कर दिया। RQ मैंने R से Q तरफ जा रहा है बेटा, ठीक है ना, Q से P तरफ प्रोड्यूस हुआ। इसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो रहा है। ओके, सो this angle, this total angle will be this total angle. What will be the result of the straight angle? This is the straight. कारण कि देखो QR is straight line, तो TR प्रोड्यूस किया तो TR is straight line. Okay, this is the angle is form हो गया। तो इसमें हम लोग का this angle we can find easily देखो। So angle PQR, ओके, एंगल PQR, ए एंगल को वैल्यू हम लोग का आसानी से निकाल जाएगा बेटा। कैसे निकाला बेटा? देखो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है बेटा। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन कैन टी आर इज ए स्ट्रेट लाइन, टी आर टी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। बड़ा कॉज हम दे सकते हैं स्ट्रेट लाइन के कारण हुआ स्ट्रेट एंगल। सो इट विल बी द रिजल्ट इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है ना। फाइन, ठीक है। एज वेल एज यू कैन फाइंड द एंगल देखो आर पी क्यू। सो एंगल देखो आर पी क्यू एंगल इक्वल टू देखो दिस एंगल आर पी क्यू मैंने दिस एंगल। सो टोटल देखो दिस एंगल 100 डिग्री straight angle and QS is the straight line. So this is also 180 degree minus 135 degree. Then is the कौन सा कॉज में देखो, कौन स्ट्रेट लाइन देखो, ओके, QS is a straight line, स्ट्रेट लाइन हो गया बेटा। समझ गया चीज को? ये हम कॉज दे दिया, स्ट्रेट लाइन के कारण हो रहा है। So this is the 5 and 45 degree. So you can write the 70 degree and it is the 45 degree. So according to the sum property of the sum of the triangle, there are two angles are given. Okay, two angles. So this is the third angle you can find. The first of the sum of this angle. So angle PQR plus angle RPQ, ये दोनों एंगल को यदि हम लोग को जोड़ दोगे, दिस प्लस दिस, जोड़ो कितना होगा? 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो इट विल बी द 5 एंड 11 115 डिग्री। सो यू कैन इजी देखो आर एंगल को फाइंड कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन था फाइंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड देखो कौन सा एंगल? एंगल पी आर क्यू। सो एंगल पी आर क्यू, एंगल PRQ, ए एंगल क्वेश्चन मार्क था, इसको फाइंड करोगे। तो इसको फाइंड करोगे सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल से यूज करोगे। सो देयर टू एंगल्स आर गिवन सम, सो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ये कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करा? सम ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है बेटा। ट्रायंगल is 180 डिग्री। ये हम लोग को सीखा देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। से इसके कॉज में हो गया। सो इट विल बी देखो 5 and 65। दिस इज द आंसर। समझ गए चीज बेटा? फिगर करोगे और ऐसे प्रॉपर्टी करोगे। पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर देखो एक्स एंगल 62 डिग्री एंड XYZ 54 डिग्री, XYZ। बिकॉज यहाँ पे देखो एक ही वर्टेक्स पॉइंट में दो एंगल है, इसीलिए इसको XYZ प्रोपर ने नाम दिया। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर माने क्या होगा? एंगल का बाइसेक्टर होता है एंड साइड का बाइसेक्टर होता है। तो एंगल जो बाइसेक्टर होगा एंगल को दोनों पार्ट से डिवाइडेड कर देता है। इसका मीनिंग समझे? बाइसेक्टर माने क्या होगा? एक लाइन आएगा, एंगल को दोनों पार्ट से इक्वल पार्ट से डिवाइडेड कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो YO 54 एंगल को डिवाइडेड कर दिया
एंड वाई जेड दिस एंगल को डिवाइडेड किया गया, इसीलिए इसको कहा जाता है वाई ओ एंड वाई जेड आर द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल रेस्पेक्टिवली ऑफ दिस ट्राइंगल, ए ट्राइंगल का। फाइंड दिस एंगल। सो क्वेश्चन नंबर देखो, ए एंगल को क्वेश्चन होगा वाई ओ जेड वाई को फाइंड करना है एंड एज वेल एज देखो वाई ओ जेड को फाइंड करना है। दिस एंगल का क्वेश्चन। हाउ टू फाइंड दिस एंगल? कुछ दिक्कत नहीं बेटा, जब 54 को डिवाइडेड कर दिया बाइसेक्टर होगा तो दिस एंगल विल बी, व्हाट विल बी दिस एंगल वैल्यू हो जाएगा बताओ, 54 डिवाइडेड बाई 2। सो देयरफॉर एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हो, को निकाल सकते हो बेटा। नेक्स्ट देखो हम लोग का वाई ओ वाई जेड इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 2 डिग्री, बाइसेक्टर कारण इक्वल टू 27 डिग्री। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल 27 डिग्री। ओके, आसानी से आगे। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ऑफ फाइंड दिस एंगल, वैल्यू ऑफ दिस एंगल देखो, ए एंगल को। ए एंगल कैसे, सम ऑफ द कोपार्टिसिड एंगल आएगा, पहले हम लोग दोनों को ऐड करोगे दिस एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री, सो इट विल बी ऐड हो गया, कितना होगा था 116 डिग्री। ओके, सम ऑफ द, so you can write easily देखो, therefore angle XZY equal to 180 degree minus 116 degree। इजीली से देखो, एंड देन सब्ट्रैक्ट करो, कितना रिजल्ट करो देखो, एंड सब्ट्रैक्ट करो देखो 4 to 64 डिग्री। सो दिस एंगल देखो, दिस एंगल 64, ये जो 180 डिग्री माइनस की सम ऑफ द प्रॉपर्टी लिख सकते हो, नहीं लिख कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को उसी टाइप जाओगे। नेक्स्ट राइट द वाई जेड ओ, चलो देयरफॉर एंगल देखो ओ जेड वाई आसानी से आ जाएगा। देखो टोटल एंगल 64, सो हाफ एंगल हो जाएगा बेटा इसका। चलो हो गए वाई ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 32 डिग्री। ठीक है बेटा, सो इसका 32 डिग्री आ गया, दिस इज 32, ओनली दिस एंगल बेटा। ओके, नेक्स्ट फाइंड द हाउ टू फाइंड। एक देखो दिस ट्राइंगल हो गया, देखो समझ में आ रहा है, हम छोटा करके हम ट्राइंगल बना रहे, देखो ये वाला। ओके, दिस ट्राइंगल आ गया। ओके, ट्राइंगल, दिस एंगल वैल्यू 27 डिग्री, दिस एंगल 32 डिग्री, दिस एंगल, ये सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स यूज करोगे, बस हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जब ए एंगल दोनों को ऐड कर लोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू देखो 7.299 एंड 59 डिग्री, दोनों एंगल को। तो हम ये एंगल को आसानी से फाइंड कर सकते, सम ऑफ द 40 ट्रायंगल। सो देयरफॉर हम लोग को लिख सकते, देखो वाई ओ जेड जो हम लोग को फाइंड करने जाओगे, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू देखो 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसका आसानी से होगा, ये सम ऑफ द ट्रायंगल प्रॉपर्टी जैसे हम तुम लोग सामने लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ओके बेटा। इसके बाद हम लोग कितना हो जाएगा बताओ, इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे देखो 6, 2 एंड 121 डिग्री। तो देयर आर 2 आंसर था, एक था आंसर तुम्हारा फाइंड कर देखो वाई ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री, ये भी आंसर मेरा सामने आ गया। एंड एंगल फाइंड द वैल्यू वाई ओ जेड फाइंड 121 डिग्री, दिस इज द आंसर बेटा। ठीक है ना बेटा, तो ये लोग हम लोग को समझ गए सीखते हो कैसे हम लोग फाइंड करोगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर, मतलब गिवन फिगर दे चुका है, देखो ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी। ठीक है, जब इसको पैरेलल है एंड ए इज द ट्रांसवर्सल, फायदा लेना है बेटा। ठीक है ना, यदि अगर ए बी पैरेलल डी होगा तो इसमें गिवन एंगल देखो, दिस इज द 35 डिग्री एंगल, इट इज ऑल्सो 35 डिग्री एंगल। ओके, इट इज नो कैसे होगा बताओ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कारण हम लोग को यहाँ पे लिख सकते, देखो सॉल्यूशन में लिख सकते हैं CED इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है ना, बिकॉज इंटीरियर में देखो AB पैरेलल टू DE है ना, एंड क्या होगा
alternate interior angles. ठीक है ना बेटा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना, इसके साथ इक्वल होगा। हमको फाइंड करना है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल DCE, दिस एंगल को फाइंड करोगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो गया, देखो यहाँ पे ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल देखो, हम यहाँ पे जस्ट डिस्कस ट्रायंगल देखो CDE, एंड इन ट्रायंगल CD तो दो ट्रायंगल गिवन होगा, D एंगल इक्वल टू कितना होगा, D एंगल इक्वल टू 53 एंड देखो एंगल E इक्वल टू 35। देन फाइंड द थर्ड एंगल, फर्स्ट सम करोगे, एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 53 प्लस 35 इज इक्वल टू 88 डिग्री। ओके, नाउ कम टू एंगल ऑफ द C। लेकिन C वर्टेक्स पॉइंट में देखो एलोन नहीं पाओगे, क्योंकि C वर्टेक्स पॉइंट में दो एंगल फॉर्म होगा, सो इक्वल द एंगल DCE। ओके, DCE is equal to 180 degree, sum of the two angles equal to 80 degree equal to, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हैं sum of the इसका equal to 92 degree, ठीक है ना, सब्जेक्ट को 92, एंड इसको प्रॉपर्टी लिख सकते हो, देखो sum of angles, ओके, of a triangle of a इक्वल लिख सकते हैं, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्स अंडरस्टैंड इज ट्रायंगल इज 180, ठीक है बेटा। एक हम लोगों ने सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो इसका पॉज के कारण हम लोग का दिस इज द आंसर। ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके, एंड कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, द क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर, मैंने गिवन फिगर दे चुका है। इफ लाइन PQRS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, देखो ये जो PQ एंड RS, PQ टू एंड RS टू लाइन इंटरसेक्ट एट T पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना, सच दैट जैसे PRT is 40 डिग्री, देखो ऑलरेडी गिवन, ओके, एंड RPT is 95 डिग्री, एंड देखो TSQ is 75 डिग्री, ऑलरेडी रिटन, देखो, एंड फाइंड दिस, देखो दिस इज द फाइंड SQT, इसको फाइंड करोगे, ठीक है, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हम लोग का देखो इसमें ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल PRT ट्रायंगल में देखो R एंगल इक्वल टू इन, देखो इन R एंगल इक्वल टू 40 डिग्री एंड P एंगल 95 डिग्री, R गिवन, ठीक है ना, R गिवन, ये तो हो चुका बेटा, गिवन दीजिए। तो एक ट्रायंगल में जो दो एंगल इज गिवन, तो अनदर एंगल, सो फर्स्ट ऑफ फाइंड दिस एंगल, हाउ टू फाइंड, तो सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसको प्रूव कर दो। तो इसके बाद हम लोग को लिखेंगे R एंगल प्लस P एंगल इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री, इट इज इक्वल टू कितना बोलो 5 and 30, 135 degree. So another this angle equal to, now you find this angle, देखो एंगल T पॉइंट पे देखो दो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ओके T पॉइंट पे एंगल PTR फाइंड करोगे, देखो PTR एंगल इक्वल टू दिस इज द 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये कौन सा, देखो ये 45 डिग्री, सो ये सम ऑफ द, बोलो सम ऑफ एंगल्स, ओके, ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर दे बेटा, ठीक है बेटा, ये यूज कर ले। तो इसका 45 डिग्री कैन राइट हियर 45 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी द 45 डिग्री, कौन सा कॉज बोलो तो बेटा, vertically opposite angle, this is the vertical opposite angle, so you can write angle, देखो STQ is equal to 45 डिग्री, कौन सा कॉज में, vertically opposite angles, ओके,
ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, एक और हम सिर्फ फाइंड कर लिया, एस टी क्यू इक्वल टू कितना, एस टी क्यू इक्वल टू 45। अगेन देखो, अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो गया देखो, यहाँ पे इसको जब फाइंड करोगे एस टी क्यू, ठीक है ना, अगेन ट्राइंगल एस टी क्यू इन देखो, इन ट्राइंगल इसमें क्यू, ए एंगल देखो इज गिवन हो गया, एस टी क्यू इक्वल टू 45 डिग्री एंड देखो एस एंगल इक्वल टू 75 डिग्री। सम करोगे दोनों का, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री। ओके, सो इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 5 0 0 10 हो जाएगा एंड 120 डिग्री। ठीक है ना बेटा, 120 डिग्री, 5 0 10 एंड 7 11 120 डिग्री। सो इट इज द रिजल्ट। समझ गए बेटा कैसे, तो ये दोनों को मिलकर अनदर एंगल कितना हो जाएगा बताओ, फाइंड द अदर एंगल्स आल्सो। देयरफॉर दिस एंगल आसानी से निकाल सकते हो, देखो एस क्यू टी एंगल देखो एस क्यू टी इक्वल टू 180। ये सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखोगे कनेक्ट ट्रायंगल का अंदर में दोनों एंगल को ऐड करोगे, दादा थर्ड एंगल हो जाएगा 100 माइनस 120 डिग्री। कितना रिजल्ट, 60 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज द आंसर रिजल्ट। ओके, फर्स्ट डिजिट नोट डाउन ऑन योर कॉपी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5। In given figure, if देखो look at PQ perpendicular to PS, PQ perpendicular symbol, PQ perpendicular to PS means 90 degree। देखो PQ perpendicular to PS, so this is the 90 degree, so symbol of the 90 degree, so you can write here 90 degree। ठीक है ना, you can use the symbol 90 degree symbol, you can write। now find the given देखो SQR equal 28 degree and QR to 65 degree, and then find the value of x and y। ठीक है ना, x का वैल्यू फाइंड करोगे, दिस इज हम लोग का मोटो, एंड y का वैल्यू हियर एंड हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can use the PQ parallel to SL। so PQ parallel, you use the symbol of the parallel symbol, and this is the symbol। okay, so here देखो P and Q, देखो here PQ parallel to S है, means देखो first of find this is the देखो SQ is the transverse cell and it will also the 100x degree, it is also x degree because alternate interior। ठीक है ना, देखो PQ parallel to S है and QS is the transverse cell of the given parallel lines, so it will be also x। so how to find the x, use the 65 is the exterior angle, it is exterior angles beta, the exterior angle sum of, so this is hidden karo, छिपा दो, the opposite interior angles, this is the x and y, so x plus 28 equal to 65 degree। ठीक है ना बेटा, so you can write here x plus 28 degree equal to 65 degree। okay, the exterior angle sum of the opposite two interior angles, ये वाला यूज कर सकते हैं, exterior angle is equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना बेटा, ये वाला हम लोग को यूज कर देंगे। ओके, सो एक्सट्रीम एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, माने इन ए ट्रायंगल, माने ये ट्रायंगल का अंदर में हो रहा है, एक्सट्रीम 65 एंड दिस इज द अपोजिट इंटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल 65। नाउ यू कैन सिंपलीफाई x इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री। सो नाउ this implies x equal to, subtract करो 7 and 3 37 degree, so you can write also here 37 degree। तो x का वैल्यू मेरा सामने आ गया, एक आंसर आ गया, x equal to 37 degree, so use here 37। now in the triangle देखो, in triangle here देखो PSQ बड़ी इजी से बेटा, टेंशन नहीं है, फिगर के SQ देखो, these two angles are given देखो
पी क्यू एस इन ट्राइंगल, देखो यहाँ पे एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 37, जस्ट आई हैव फाउंड किया था, तो आई हैव फाउंड हियर 37 डिग्री एंड वाई को फाइंड करोगे, देखो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो सम एंड एंगल पी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, सो यू कैन यूज एंगल देखो पी क्यू एस प्लस एंगल पी इक्वल टू 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री, सो इट विल देखो ऐड करो 127 डिग्री, ठीक है ना, 187, दिस टू एंगल एंड अनदर थर्ड एंगल इक्वल टू वाई, मतलब दिस इज द वाई इक्वल टू देखो वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, ये सम ऑफ द ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी वो लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एक प्रॉपर्टी हम लोग बार बार लिखोगे कॉस दोगे तो अच्छा बात है बेटा, then this implies y equal to सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना देखो 3 एंड देखो 5, 53 डिग्री, ये भी आपका आंसर आ गया, ओके, पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। Hello student, the question number last question in the NCERT book, question number 6 in the given figure देखो already given, अब just the side QR of triangle PQR is produced, देखो PQR ट्रायंगल को साइड को कौन सा QR, जो QR को हम Q से R तरफ S तरफ प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, गिवन फिगर में टू ए पॉइंट S, इफ द बाइसेक्टर माने क्या होगा, बाइसेक्टर माने दोनों को पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइडेड कर देगा, ठीक है ना, हियर देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS, माने दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल डिवाइडेड हो गया, ये बाइसेक्टर होगा, RT is the bisector and QT is the bisector of this angle and this angle and divided two। देखो यहाँ पे दो को लाइन खींचा, इन दोनों में क्या दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल होगा, ये भी एंगल इक्वल होगा। अगर इसको बहुत आसानी से हम लोग को प्रूव कर सकते हैं, मैंने यू हैव टू प्रूव, मैंने हम लोग को करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या करोगे देखो एंगल QTR इक्वल टू 1/2 इंटू QPR, माने ए एंगल के साथ रिलेशन तुमको बनाना है। देखो यहाँ पे एकदम आराम से रखोगे, अगर हमको ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर हम इसमें y ले लेते हैं, ए भी 1 से y है, इनका मेजरमेंट सपोज y कुछ भी ले सकते हैं बेटा, 30 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, इसका हम लोग x, ये भी x, इसमें हम लोग का 10 डिग्री ले सकते हैं, 10 कोई भी 100 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है ना, इनका वैल्यू लेस देन 180 से लाओगे, कुछ जनों ने इसका मिला के होना चाहिए, ठीक है, x मीन वेरिएबल टर्म, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 50 यहाँ पे हम 40 भी ले सकते हैं, इसीलिए हम y ले लिया। इसमें हम लोग को देखो सम एक ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल फर्स्ट आप लोग कैसे फाइंड कर रहे, फर्स्ट हम एक ट्रायंगल का ले रहे, एक ट्रायंगल का देखो, इन ट्रायंगल देखो TQR, इसमें देखो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, x इज द एक्सटीरियर एंगल, तो हमने देखो T एंगल TRS इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल, ओके, ये यदि एक्सटीरियर एंगल होगा तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, तुम बोलो, ए एंगल ए ट्रायंगल का एक्सटेंड वैल्यू, तो इसमें वैल्यू हम लोग टी एंगल का एज एंगल का वैल्यू कितना डिग्री बताओ, x माइनस y होगा, सम ऑफ द बेटे से देयरफॉर एंगल आपको ए एंगल का फाइंड करोगे QTR इक्वल टू x एक्सट्रीम एंगल माइनस अपोजिट वन, तो x माइनस y, समझ गए चीज को बेटा। देखो हम यहाँ पे एक चीज का देखा रहे, एक ट्रायंगल से देखो, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिया, ओके, एक ट्रायंगल हम बना लिया, दिस इज द एक्स ट्रायंगल, सपोज यदि x a डिग्री होगा, a यदि y हो गया, तो हम लोग ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल कितना होगा बताओ, क्योंकि देखो ये दोनों मिल के x होना चाहिए, है ना बेटा, दोनों के दिस एंगल प्लस दिस एंगल x,
तो दिस एंगल इक्वल टू, जैसे यहाँ पे इसको नाम दोगे जेड, तो जेड इक्वल टू होगा एक्स माइनस वाई, यही वाला हमने लिख रहा बेटा, ठीक है, इसी टाइप करेगा, ठीक है ना, एक्स माइनस वाई, एक्स ट्रायंगल माइनस वन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स माइनस करोगे तो ये एंगल हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ले देखो, अगर ये ट्रायंगल के ले लोगे, इन ट्रायंगल देखो, अगेन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें देखो कौन से एक्स ट्रायंगल देखो, पी आर एस, इन देखो एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, इज एन एक्सटीरियर एंगल बेटा, ठीक है ना, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इसका रिजल्ट देखो, ये जो एंगल कितना डिग्री देखो, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स प्लस एक्स दोनों में मिलकर एक्स हो रहा है, तो इनका वैल्यू एंगल कितना होगा, एंगल पी आर एस इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x मेजरमेंट हो गया। नाउ कम द दिस एंगल, देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो एंगल क्यू इक्वल टू, ठीक उसी तरह का वाई प्लस वाई इक्वल टू क्यू में देखो, इसको दोनों पार्ट में देखो, यहाँ पे एक चीज में देखो, एक पॉइंट में दो, एक भाट में दो एंगल, इसीलिए इसको एंगल यहाँ पे लिखो, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू वाई प्लस वाई इक्वल टू 2y हो गया, ठीक है ना। तब से एक्सटीरियर एंगल होने के कारण हम लोग ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल देखो क्यू पी आर इक्वल टू देखो 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, ठीक है ना बेटा, एक्सटीरियर एंगल माइनस 1 अपोजिट इंटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें हम लोग का देखो दिस इंप्लाइज एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई, 2 कॉमन ले ले, ठीक है बेटा, ठीक इसी तरह देखो, इसमें हम फाइंड किया एंगल क्यू टी आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो गॉट हुआ एक्स माइनस वाई, तो एंगल का वैल्यू हम लोग का देखो एक्स माइनस वाई का एंगल का वैल्यू कितना, क्यू टी पी आर, तो दिस इंप्लाइज एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 2 इंटू एंगल देखो एंगल क्यू टी आर, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू हो गया देखो, इंटू क्रॉस दे दो, इंटू हो गया बेटा, बिकॉज यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम गॉट किया, ठीक है ना, हम तो यहाँ पे इसका आंसर निकाल दिया था, तो एंगल बिकॉज देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ऑलरेडी आई एम गॉट, ठीक है ना, वह फाउंड किया, जस्ट आई फाउंड दिस वैल्यू, सो इक्वल टू इसका हम लोग निकाल सकते, दिस सिंपल यदि घुमा दागे 2 इंटू एंगल क्यू टी आर इक्वल टू, जस्ट इसको राइट हैंड में कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड एंड एंगल क्यू पी आर, देयरफॉर दिस इंप्लाइज देखो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 2 डिवाइड, जैसे हम लोग को देखें 2x इक्वल टू यदि 10 होगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10/2 लिखते हैं, ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन फॉलो करोगे, तो 1/2 इंटू एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूफ हो गया बेटा, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, इसका आंसर नहीं लिखोगे, यहाँ पे प्रूफ लिखोगे, ठीक है बेटा, देखो यही चीज जो प्रूफ था, प्रूफ दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ इंटू क्यू पी आर, हम प्रूफ कर बेटा, ओके। अगर तुम लोग का मेरा जो क्लास का वीडियो क्लास तुम लोग को भी अच्छा लगे, हेल्प होगा, तुम लोग को मदद मिलेगा, प्लीज माय वीडियो को तुम लोग को माय चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं वीडियो को लाइक भी करोगे एंड शेयर अदर क्लासमेट के, ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट टॉपिक में ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करें नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू बेटा, ओके, पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन कॉपी।